اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے مرثیہ کی تعریف اور اس کے اصول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرثیہ کا آغاز و ارتقا بھی پڑھیں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو رہے گی وہ مرثیہ کی تعریف اور اصول رہے گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو مرثیہ کا آغاز و ارتقا پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ میرے ویڈیو میں بنے رہیں، پوری ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں۔ یہ آپ کا BA پارٹ 1 کا ہے، شاعری کے اصناف۔ تو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اردو شاعری کے اصناف، ٹھیک ہے۔ اردو شاعری کے اصناف میں نے یونٹ 1 میں غزل کی تعریف، اصول اور ارتقا پڑھا دیا ہے، قصیدہ، تعریف، اصول اور ارتقا پڑھایا ہے، اور آج میں آپ کو پڑھاؤں گی مرثیہ، تعریف اور اصول اور ارتقا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھاؤں گی۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے مرثیہ، تعریف اور اس کے اصول، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو میں بنے رہیں، پوری ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اور اسکپ کیے بغیر دیکھیں تاکہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں، نیٹ، JRF یا BA یا MA اردو ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں، تو یہ نوٹس آپ کے لیے بہت مفید ہے اور میں نے اس کے سارے نوٹس تیار کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے مرثیہ، تعریف اور اس کے اصول، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں مرثیہ کسے کہا جاتا ہے، مرثیہ کے معنی کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا دھیان سے دیکھیے گا اور پوری ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اچھے سے دیکھیے گا، اور اگر آپ کے دوست بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اظہار غم کیا گیا ہو۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں کیونکہ ہم جو بھی لکھتے ہیں وہ نظم کی صورت میں لکھتے ہیں، تو مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر، جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں، اظہار غم کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تو مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی موت پر اظہار غم کیا گیا ہو اور اس کی خوبیاں بیان کی گئی ہوں، اور مرنے والے کی خوبیاں بیان کی گئی ہو۔ مرثیہ میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی موت پر ہم کیا غم کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں اور اس کی خوبی بیان کرتے ہیں مرثیہ میں، ٹھیک ہے۔ مرثیہ عربی لفظ ہے، مرثیہ کیا ہے، عربی لفظ، یاد رکھیے گا، مرثیہ عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، جو رسا سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے، رسا سے نکلا، بہت کام کی بات ہے۔ مرثیہ عربی لفظ ہے جو رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی آہو بکا کے ہیں۔ جس کے معنی کیا ہوتے ہیں، آہو بکا، یعنی رونا، افسوس کرنا، غم کرنا۔ تو مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو رسا سے نکلا ہے اور جس کے معنی ہے آہو بکا کرنا، یعنی رونا، ٹھیک ہے، رونا دھونا، ماتم کرنا۔ مختلف افراد کی موت پر جو مرثیے لکھے گئے شخصی مرثیے کہلائیں، اور جو مختلف لوگوں کی موت پر مرثیے لکھے گئے اسے شخصی مرثیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حالی کا مرثیہ غالب، حالی نے کیا ہے، غالب پر مرثیہ لکھا ہے تو یہ شخصی مرثیہ ہے۔ اقبال کا مرثیہ داغ، اقبال نے اپنے استاد داغ پر مرثیہ لکھا ہے تو یہ شخصی مرثیہ ہے۔ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اس سے تعلق رکھنے والے کو دلی صدمہ پہنچتا ہے۔ جب ہمارے یہاں کسی رشتہ دار کی، کسی اپنے کی موت ہوتی ہے تو اس سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بہت کیا دلی صدمہ پہنچتا ہے۔ اور اگر سوگواروں میں کوئی شاعر ہے تو اس کے دلی جذبات شعر کا پیرایا اختیار کر سکتے ہیں، اور جو سوگوار ہیں، جو غم کرنے والے ہیں، جو دکھ میں ان کے شامل ہیں، اگر اس میں کوئی شاعر ہے تو اس کے دلی جذبات شعر کا پیرایا اختیار کر سکتے ہیں۔ جو شاعر ہے وہ کیا اپنے دل کی بات کو شعر میں لکھ دیتا ہے، نظم میں لکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام زبانوں میں مرثیہ کا ذخیرہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام زبانوں میں مرثیہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ جب بھی کسی اپنے کی موت ہوتی ہے تو لوگ کیا بہت غمگین ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں اور بہت روتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اسی میں اگر کوئی شاعر ہوتا ہے تو اپنی باتوں کو کیا ہے نظم میں لکھ دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام زبانوں میں مرثیہ کا ذخیرہ موجود ہے، یعنی مرثیہ ہر زبان میں لکھی گئی ہے۔ لیکن جب اردو شاعری کے حوالے سے مرثیہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے ایک خاص صنف شاعری مراد لی جاتی ہے۔ لیکن اردو شاعری میں جب مرثیہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے کیا ہے ایک خاص صنف شاعری مراد لی جاتی ہے، یعنی شاعری کے ایک صنف ہے۔
शायरी में क्या क्या पढ़ते हैं, नज़म, गज़ल, मरसिया, कसीदा, मसनवी। तो मरसिया भी क्या है, एक शायरी के एक ख़ास सिन्फ है, ठीक है, जो शख्सी मरसिए से ज़्यादा वसी है, जो शख्सी मरसिए से ज़्यादा वसी, क्योंकि शख्सी मरसिए कुछ ही लिखे गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखे गए हैं। इसमें वाक़यात करबला, हज़रत इमाम हुसैन और उनके अक़रबा व रफ़क़ा के मुसाइब, इनकी शहादत का बयान, बल्कि सफ़र करबला से पहले के हालात और शहादत के बाद के वाक़यात भी शामिल हैं। जब हम उर्दू में मरसिए का ज़िक्र करते हैं तो इससे एक ख़ास सिन्फ़ शायरी मुराद ली जाती है। इसका मतलब ये है कि ये शख्सी मरसिए से बहुत ज़्यादा वसी है, बहुत आगे है। और इसमें क्या होता है, वाक़यात करबला, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन के अक़रबा होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके मुसाइब, उनके मुसीबत को लिखा जाता है, उनकी शहादत को लिखा जाता है, उनके सफ़र का ज़िक्र बयान किया जाता है। जब वो सफ़र करते हैं और जब उनकी शहादत हो जाती है तो शहादत के पहले के हालात बयान किए जाते हैं, शहादत के बाद के हालात बयान किए जाते हैं। तो हम जो मरसिया पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ क्या आ जाता है, करबला का सीन आ जाता है, और करबला में जो कुछ हुआ है वो सीन हमारे दिमाग में घूमने लगता है। तो मरसिया ख़ास करके जो उर्दू में लिखा जाता है वो क्या है, इमाम हुसैन की शहादत और उनके जितने भी रिश्तेदार थे, दोस्त और जो भी उसमें शामिल थे, सब पर क्या है, सब पर मरसिया लिखा गया है, ठीक है। जब दश्त करबला में यानी करबला में ये सानहा पेश आया, ये वाक़या सानहा यानी ये वाक़या पेश आया, तो इसके कुछ ही दिनों बाद अरबी नज़्मों में इसका ज़िक्र होने लगा। जब दश्त करबला में यानी करबला के मैदान में ये वाक़या पेश आया तो उसके कुछ ही दिनों के बाद क्या है, अरबी नज़्मों में इसका ज़िक्र होने लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाक़या था। ये वाक़या हर इंसान के दिल को छू गया था। इमाम हुसैन की जो शहादत थी और करबला में जो जंग हुआ था, ये बातें सबके दिल में घुस गई थी। ये बहुत बड़ा वाक़या था और इमाम हुसैन ने सच्चाई के लिए अपना सर पेश कर दिया और शहीद हो गए। और उनके साथ जो भी लोग थे, उनके साथ 72 लोग शामिल थे, वो सारे शहीद हो गए जंग में। एक एक करके उन्होंने जंग किया और शहीद हो गए। तो ये जो वाक़या था ये बहुत बड़ा वाक़या था, इंसान के दिल को छू गया था। तो ये वाक़या होने के बाद क्या है, अरबी नज़्मों में इसका ज़िक्र कुछ ही दिनों के बाद से होने लगा था। करबलाई मरसिए फ़ारसी में भी मौजूद हैं। उर्दू में शायरी के आगाज़ के साथ ही मरसिया निगारी की इब्तिदा हुई, लेकिन मरसिया की शक्ल में अहद बहद तब्दीली होती रही। जब मरसिया लिखे जाने लगा तो अरबी नज़्मों के बाद क्या है, फ़ारसी में भी ये मरसिया मौजूद था। उर्दू शायरी के आगाज़ के साथ ही मरसिया निगारी की इब्तिदा होती है। जब उर्दू शायरी का आगाज़ होता है तो साथ साथ क्या है, मरसिया निगारी की भी इब्तिदा होती है। लेकिन मरसिया की शक्ल में अहद बहद तब्दीली होती रही। अहद बहद यानी अहद जैसे जैसे गुज़रता गया, वक्त गुज़रता गया, तो मरसिया की शक्ल में भी क्या तब्दीली होती गई, ठीक है। इसके लिखने का जो तरीक़ा है वो बदलता गया। तो आप पूरी वीडियो को अगर स्किप किए बगैर देखिएगा तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। मैं बहुत सारी बातें आपको बताती चलूँगी, ठीक है। मैं बार बार बताती हूँ कि पूरी वीडियो को देखिएगा और स्किप किए बगैर देखेगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। और मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो अगर आपको लगे कि मैं मेहनत करती हूँ तो आप हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। मरसिया निगारी से उर्दू को बहुत फ़ायदा पहुँचा और मरसिया निगारी से क्या है, उर्दू को बहुत फ़ायदा पहुँचा। इसके वसीले से उर्दू शायरी में लातादाद मज़ामीन दाखिल हुए। इसके वसीले से यानी इसकी वजह से उर्दू शायरी में लातादाद यानी बहुत सारे मज़ामीन, मज़मून की जमा मज़ामीन। तो उर्दू शायरी में क्या है, मरसिए की वजह से बहुत सारे मज़ामीन दाखिल हो गए, उसमें शामिल हो गए। मिसलन इमाम हुसैन का अहबाबो अज़ा से रुखसत होना, सफ़र के हालात, मंजिल पर पहुँचना, मुखालफिन से मुख्तलिफ़ अंदाज़ गुफ्तगू, गुमराहों को राह रास्त पर लाने की कोशिश, शादी की रस्म, मैदान जंग का नक्शा, इसलाह जंग का बयान, दुश्मन के रूबरू रजिज़िया इशार, जंग, शहादत, बैन और जंग के बाद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म ज़्यादती, ये इतने सारे क्या मज़ामीन मरसिए में शामिल हो गए। मरसिए से उर्दू में बहुत फ़ायदा पहुँचा। उर्दू शायरी में क्या है, बहुत सारे मज़ामीन शामिल हो गए मरसिए की वजह से। तो इसमें और सारे कौन कौन मज़ामीन शामिल हुए हैं, जैसे अहबाब अज़ा यानी अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से क्या है रुखसत होते हैं और सफ़र का हालात बयान किया जाता है। सब लोगों से वो मुख्तलिफ़ अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। जो गुमराह है उनको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। शादी की रस्में हैं, मैदान जंग का नक्शा है,
इसलाह जंग का बयान, यानी जंग में जो भी औजार बंदूक गन इस्तेमाल किया गया, तलवार इस्तेमाल किया गया है, उसका बयान होता है। दुश्मन के रूबरू रजिया इशार, यानी दुश्मन के रूबरू खड़े होकर अपने बुज़ुर्गों की तारीफ़ करना, उनके सामने रजिया इशार पढ़ना। जंग का बयान होता है, शहादत का बयान होता है, और बैन और जंग बैन यानी जब लाश लाया जाता है और उस पर दोस्त माँ बहन बैठकर रोती हैं, बोल बोल कर रोती हैं, उसके औसाफ बयान करके रोती हैं, तो उसे बैन कहा जाता है। और जंग के बाद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म ज़्यादती, और जंग होने के बाद जो आले रसूल जो लोग बचे थे उन पर बहुत सारे जुल्म हुए, उनका भी बयान इसमें मरसिया में किया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे मज़ामीन क्या है मरसिया की वजह से उर्दू शायरी में शामिल हो गए। सदहाय वाक़यात के अलावा हमारे मरसिया निगारों ने बेशुमार किरदार भी पेश किए हैं, और ये वाक़यात के अलावा मरसिया निगारों ने क्या बेशुमार किरदार पेश किए हैं। किरदार कौन है? जो उस वक्त शामिल थे लोग उसमें, बेटा बेटी मर्द औरत, जो बुज़ुर्ग थे, जो बदमाश थे, जो नेक थे, सारे किरदार भी इसमें पेश किए गए हैं। इनमें नेक और हक़ परस्त भी हैं, जो लोग हैं वो नेक भी हैं, हक़ परस्त भी हैं, यानी हक़ पर रहने वाले हैं, हक़ पर बोलने वाले हैं, और गुमराह और बेदीन भी हैं, कुछ लोग गुमराह भी हैं, बेदीन भी हैं। इसके अलावा मर्द औरत बूढ़े बच्चे, हलीम और साबिर, गयूर और गुस्सावर, जंगजू और अमन पसंद, हर तरह के किरदार हैं, और जा बजा इनकी सीरत पर रोशनी डालने की ज़रूरत पेश आई। और इन किरदार पर क्या है रोशनी डाली गई है कि ये लोग कैसे हैं, कोई नेक हैं तो कैसे नेक हैं, उनके नेकी के बारे में बताया गया है। जो बुरा इंसान है वो कैसा है, उनकी बुराई के बारे में बताया गया है। जो बच्चे हैं वो कैसे हैं वहाँ पर, जो बड़े हैं वो कैसे हैं, तो इन सब की सीरत पर क्या है रोशनी डाली गई है। इसलिए मरसिया निगारी से उर्दू का दामन वसी हुआ है, और इसलिए मरसिया निगारी से क्या है उर्दू का दामन वसी हुआ यानी फैला है। उर्दू में बहुत सारे मजमून शामिल हुए हैं, और इसके सरमाए में अल्फाज के एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे का इजाफ़ा हुआ, और इसके सरमाए में यानी इसके पूंजी में अल्फाज के एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे का इजाफ़ा हुआ है, यानी अल्फाज के बहुत सारे अल्फाज इसमें शामिल हुए हैं। तो आप कहाँ से देख रहे हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो ओनली 150 रुपीज़ में आपको इसका PDF मिलेगा। आपको मैं 150 रुपीज़ में इसका PDF दूंगी। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं उर्दू शायरी के असनाफ में गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, नज़म और रुबाई, इन सब की तारीफ़, उसूल और इर्तिक़ा का पूरा PDF दूंगी, और ओनली 150 रुपीज़ में आपको इसका PDF मिलेगा, और ये मेरा नंबर है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं मरसिए के इज्ज़ाए तरकीबी। ठीक है, मरसिए के इज्ज़ाए तरकीबी क्या है इसको समझ लेते हैं। इब्तिदा में तो मरसिए की कोई शक्ल मुतय्यन थी, ना इसके इज्ज़ा मुकर्रर थे। इब्तिदा में मरसिए की कोई शक्ल नहीं थी मुतय्यन, और ना इसके इज्ज़ा मुकर्रर थे। मीर ज़मीर ने इसकी शक्ल तय कर दी, और मीर ज़मीर ने इसकी शक्ल तय कर दी और इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मीर ज़मीर ने इसकी शक्ल तय कर दी और इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ताकि देखिए नेट JRF के एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि मरसिए के इज्ज़ाए तरकीबी क्या है, और इसको सीरियल वाइज बताइए। ठीक है, तो सीरियल वाइज जब आपको याद रहेगा, जैसे पहले चेहरा है, फिर सरापा है, रुखसत है, आमद है, रजज़ है, जंग है, शहादत और बैन है। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको बहुत डिटेल से पढ़ा रही हूँ, और सारे पॉइंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, आपको इधर उधर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मरसिए के इज्ज़ाई तरकीबी हैं ये 8 हैं, और इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है चेहरा। चेहरा मरसिया के तमहीद को कहते हैं। इसमें शायर ऐसे मुख्तलिफ मज़ामीन नज़म करता है जिनका मरसिए के असल मौजू से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता। चेहरा क्या मरसिए की तमहीद है, यानी तमहीद बांधा जाता है, गज़ल शुरू की जाती है, नज़म शुरू की जाती है, उसके बाद मरसिया लिखा जाता है। तो इसमें क्या है शायर मुख्तलिफ मज़ामीन पेश करता है जिनका मरसिए के असल मौजू से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जैसे सुबह का मंज़र, रात का समा, गर्मी की शिद्दत, दुनिया की बेसबाती, सफ़र के मसाइब, अपनी शायरी की तारीफ़, हम्द, मुनक़बत वग़ैरह।
تو جو چہرہ ہوتا ہے اس میں کیا ہے، مرثیہ نگار نظم پیش کرتا ہے، کبھی صبح کا منظر پیش کر دیتا ہے، کبھی رات کا سما پیش کر دیتا ہے، کبھی اپنے مرثیے کی، اپنے نظم کی، اپنے غزل کی تعریف بتاتا ہے، کبھی گرمی کی شدت بتاتا ہے، کبھی دنیا کی بے ثباتی کا بتاتا ہے، اور کبھی اپنے سفر کے مصیبت کے بارے میں، مصاب یعنی مصیبت کی جمع، اس کے بارے میں بتاتا ہے، تو کبھی حمد لکھتا ہے، کبھی منقبت لکھتا ہے۔ یہ کیا ہے، چہرہ ہے۔ دوسرا ہے سراپا، اس میں مرثیے کے ہیرو کے قد و قامت، خد و خال اور دیگر اوصاف کا بیان ہوتا ہے۔ جو ہیرو ہے، جو میدان جنگ میں جا رہا ہے، تو اس میں کیا ہے، اس کا سراپا پیش کیا جاتا ہے، اس کے قد و قامت کیسا ہے، کتنا لمبا چوڑا ہے، وہ دیکھنے میں کیسا ہے، اور اس کی کیا کیا صفت ہے، اوصاف صفت کی جمع، تو اس کی کیا کیا صفت ہے، یہ بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے رخصت تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں، جب میدان جنگ میں ہیرو جاتا ہے تو اپنے عزیز سے، اپنے رشتہ دار سے رخصت لیتا ہے، تو اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، ٹھیک، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو رخصت لیتے ہیں، اپنے عزیز سے، اپنے قاریب سے، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، تو یہ تو جنگ کا میدان ہے، اور جنگ کے میدان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جائیں گے تو شہید ہو کر ہی آئیں گے، تو ہیرو کیا ہے، امام حسین سے اجازت لیتا ہے اور اپنے تمام عزیز سے، دوست سے، ماں سے، بہن سے، بھائی سے، سب سے اجازت لیتا ہے اور رخصت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو آپ سمجھ جائیے کہ ہیرو کیا ہے، میدان جنگ میں آیا۔ اس جز میں ہیرو گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ اس ذیل میں گھوڑے کی مبالغہ آمیز تعریف بھی کی جاتی ہے۔ جب ہیرو میدان میں آتا ہے تو اس جز کو کیا کہتے ہیں، آمد کہتے ہیں۔ تو ہیرو کا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت سے کیا میدان جنگ میں آتا ہے، اور میدان جنگ میں آنے کا اس میں منظر پیش کیا جاتا ہے، اور اسی ذیل میں کیا گھوڑے کی بھی تعریف کی جاتی ہے، اس کی تعریف بڑھا چڑھا کر کی جاتی ہے کہ اس کا گھوڑا اتنا جاباز ہے، اتنا بہادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آمد۔ اب رجز کا مطلب ہوتا ہے ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارنامے کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کا بیان کرتا ہے۔ ہیرو جب میدان جنگ میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے خاندان کی تعریف کرتا ہے، اپنے بزرگوں کے کارنامے گناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے دشمن کے سامنے ہیرو کیا ہے، اپنے خاندان کی تعریف کرتا ہے اور اپنے بزرگوں کے کارنامے کا ذکر کرتا ہے، اور جنگ کے معاملات میں کیا اپنی مہارت اور بہادری کا بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم نے بہت سارے جنگ کی ہیں اور میرے اندر اتنی بہادری ہے، میں نے کئی کو مارا ہے۔ دشمن کے فوج کے جس پہلوان سے مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے اسلاف کی بہادری کو بیان کرتا ہے، اور دشمن کے فوج کے سامنے جو اس کا دشمن ہے وہ بھی کیا ہے، اپنے خاندان کی، اپنے بزرگوں کی تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ، اب یہاں پر جنگ دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو جنگ کرتا ہے۔ ہیرو مقابل فوج کے کسی نامور پہلوان سے یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے۔ ہیرو کیا ہے، اپنے فوج کے مقابلے سامنے جاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، کسی ایک پہلوان سے مقابلہ کرتا ہے یا پوری فوج سے لڑتا ہے، اور بہت شجاعت یعنی بہادری کے ساتھ وہ لڑتا ہے۔ جنگ کے زمانے میں ہیرو کے تلوار، گھوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے، اور اس میں جنگ میں کیا ہے، ہیرو کے تلوار کی بھی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے گھوڑے کی بھی تعریف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ شہادت، اب شہادت میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو کیا ہے، جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیرو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے بالآخر دشمنوں کے ہاتھ زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے۔ مرثیے کے اس جزو میں اس شہادت کا بیان انتہائی مؤثر انداز میں کیا جاتا ہے۔ جب ہیرو کیا بہت بہادری سے لڑتا ہے اور لڑتے لڑتے آخر دشمنوں کے ہاتھ زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے، تو مرثیے کے اس جزو میں اس کی شہادت کا بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انتہائی مؤثر انداز میں ہوتا ہے، یعنی اثردار انداز میں ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے آنکھ سے آنسو نکل جائے، اسے رونا آ جائے، اس طرح سے شہادت کا بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انتہائی مؤثر انداز میں کیا جاتا ہے۔ بین یعنی رونا، آہو بکا کرنا۔ جب کیا ہے ہیرو شہید ہو جاتا ہے اور اس کی لاش کو گھر پہ لایا جاتا ہے تو عورتیں، بچے، اس کے دوست بہت روتے ہیں، چلا کر روتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، عورتیں بول بول کر روتی ہیں، تو اسے بین کہا جاتا ہے۔ یہ مرثیے کا آخری جزو ہے، یہ آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ جزو یعنی آخری حصہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے علیحدہ جزو شمار نہیں کرتے بلکہ
शहादत ही में शामिल करते हैं। कुछ लोग क्या है, ये जो शहादत है इसी में बैन को भी शामिल कर देते हैं, लेकिन ये एक अलग हिस्सा, ठीक है। इस आखिरी हिस्से में इस मंज़र की तस्वीर कशी की जाती है, और इस आखिरी हिस्से में इस मंज़र की तस्वीर कशी की जाती है जब हीरो की लाश पर इसके रिश्तेदार बिलखुसूस औरतें और इसकी खूबियों का बयान करके रोती हैं। जब लाश आता है, जब शहीद होकर हीरो घर आता है, तो सोचिए कैसा मंज़र होगा, औरतें कैसे रो रही होंगी। वो बयान करती हैं, बोलती हैं और बोल बोल कर रोती हैं, उसकी खूबियों को बयान करके रोती हैं, ठीक है। शुहदाए करबला के मरसिए तमाम हियतों में लिखे जाते हैं। आप अगर किसी चीज़ को भी पढ़िए तो रट्टा मत लगाइए, आप इसको कहानी के तौर पर पढ़िए कि एक कहानी है। आप जानते हैं कि इमाम हुसैन करबला में लड़े थे, जंग हुआ था, वहाँ पर शहीद हुए थे एक एक करके सब लोग, तो उनकी कहानी पढ़िए, उन्हें समझिए, उस वक्त के हालात को समझिए, फिर देखिए आपको कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। जब आप उस हालात में चले जाएंगे और मैदान करबला का सीन सोचेंगे तो आपको एक एक बातें समझ में आ जाएगी और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो शहदाए करबला के जो मरसिए हैं तमाम हियतों में लिखे जाते थे। सौदा ने मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहा। पहले क्या है, जो शहदाए करबला के मरसिए थे, जो मरसिए लिखे जाते थे वो तमाम हियतों में लिखे जाते थे, ठीक है। हैयत यानी उसका जो तरीक़ा था, लिखने का तरीक़ा था, कोई 2 मिसरे में लिख रहा, कोई 4 मिसरे में लिख रहा, कोई 6 मिसरे में लिख रहा, कोई 8 मिसरे में लिख रहा है। तो ये तमाम हियतों में क्या है, लिखे जाते थे। लेकिन सौदा ने इसके लिए मुसद्दस की शक्ल पेश कर दी, ठीक है। सौदा ने मुसद्दस की शक्ल में मरसिए कहा और ज़मीर ने मरसिए के लिए मुसद्दस को मखसूस कर दिया, ठीक है। सौदा ने क्या है, इसे मुसद्दस की शक्ल में लिखा और बाद में ज़मीर ने इसे क्या है, मखसूस कर दिया कि मरसिया मुसद्दस की शक्ल में लिखा जाएगा। मुसद्दस किसे कहते हैं, 6 मिसरे वाली नज़म को मुसद्दस कहते हैं, ठीक है। 6 मिसरे वाली नज़म को मुसद्दस कहते हैं। तो मरसिया क्या है, 6 मिसरे में लिखा जाता है, समझ गए होंगे आप। मरसिए को मुकम्मल रज़मिया तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे मरसिए में रज़मिया अनासिर की फरावानी है। रज़मिया कहते हैं रज़मिया ऐसे तवील नज़म को कहते हैं जिसमें क्या है, जिसमें किसी बहादुर फ़र्द या कौम की जंगी कारनामों को पेश किया जाता है। रज़मिया किसे कहते हैं, जिसमें क्या है, किसी बहादुर या कौम के जंगी कारनामों को पेश किया जाता है, ठीक है। तो मरसिए को मुकम्मल रज़मिया तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे मरसिए में रज़मिया अनासिर की फरावानी है। ये बात भी सही है कि हमारे मरसिए में रज़मिया अनासिर की फरावानी है, यानी जंग के हालात बहुत ज़्यादा इसमें पेश किए गए हैं। रज़मिया की तरह मरसिया भी एक अज़ीमुश्शान जंग की कहानी ही है, और रज़मिया की तरह क्या है, मरसिया भी क्या है, अज़ीमुश्शान जंग की कहानी है, ठीक है, जो एक बरगज़ीदा शख्सियत की तरफ से एक आला मकसद के लिए लड़ी जाती है। और ये जो जंग की कहानी है एक बरगज़ीदा शख्सियत यानी एक बुज़ुर्ग शख्स की तरफ से एक आला मकसद के लिए लड़ी जाती है, ठीक है। क्योंकि इमाम हुसैन ने कह दिया था कि हम किसी झूठे के हाथ पर बैत नहीं करेंगे, हम सच्चे के हाथ पर बैत करेंगे और सच्चाई के लिए लड़ेंगे और हक़ पर रहेंगे। तो ये क्या है, एक आला मकसद के लिए जंग लड़ी गई थी। फ़र्क इतना है कि इसमें फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर की कमी है और ये क्या सच्चाई पर वाक़या है। ये कहानी क्या सच्चाई पर वाक़ई है, इसमें कोई फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दास्तान में क्या फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर होता है, जिसमें क्या है, जिन होता है, पहाड़, जिन क्या है पहाड़ को लेकर चला जाता है, जिसमें परियां होती है, परी क्या है शहजादे को उठा ले जाती है। तो इसमें फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर नहीं है, इसमें सच्चाई की कहानी है। इसके अलावा मरसिए में अलमिया के औसाफ भी मौजूद हैं। अलमिया कहते हैं दर्द व गम के औसाफ भी इसमें क्या है मौजूद हैं, ठीक है। मरसिया दरस अखलाक भी है। जनाब इमाम और इनके इज़्ज़ा व रफ़्क़ा अपने दुश्मनों के साथ भी इंसानियत का सलूक करते हैं। इमाम हुसैन और उनके साथ जो उनके अज़ीज़ थे, उनके रफ़्क़ा यानी उनके जो दोस्त थे, अपने दुश्मन के साथ भी क्या इंसानियत का सलूक करते थे। इनकी सखावत का ये आलम है कि सफ़र के दौरान जनाब हुर के प्यासे लश्कर को सैराब करने के लिए पानी का ज़ख़ीरा खाली कर देते हैं। और इनके जो सखावत का ये आलम है कि जनाब हुर के प्यासे लश्कर को सैराब करने के लिए पानी का ज़ख़ीरा क्या खाली कर देते हैं, जंग में पहल नहीं करते और गुमराहों को राह रास्त पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन जब हक़ के लिए तलवार उठाने की ज़रूरत पेश आती है तो एक मुजाहिद हज़ारों लाखों के मुकाबला करता है। और ये लोग इतने सच्चे थे, इतने दिल वाले थे, इतने सख़ी थे, सखावत यानी सख़ी, इतने सख़ी थे, दिल वाले थे कि अपने
दुश्मन के लिए भी क्या है, पानी का ज़ख़ीरा खाली कर देते हैं और छोड़ देते हैं, और जो गुमराह है उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हक़ की बात आती है तो तलवार उठाते हैं, और एक मुजाहिद हज़ारों लाखों का मुकाबला भी करता है और जान दे देता है। हक़ के लिए सीना सुपर हो जाने, मुसीबतों को खंजा पेशानी से बर्दाश्त करने, हर हाल में खुदा का शुक्र बजा लाने और सब्र करने की तालीम करबलाई मरसिए से बेहतर कहाँ मिल सकती है। आप जान सकते हैं कि करबलाई मरसिए में क्या है, सब्र है, शुक्र है, बर्दाश्त है। ये सारी तालीम हमें क्या है, मरसिए से मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं मंजर निगारी। मंजर निगारी के जितने नमूने मरसिए में मिलते हैं उर्दू शायरी के किसी और सिनफ में मौजूद नहीं है। जो मंजर निगारी है, जैसे इमाम हुसैन आ रहे हैं तो कैसा मंजर है, क्या हालात हैं, ज़बान सूख रहा है, खुश्क हवा चल रही है, पानी नहीं है, लोगों का प्यास से हालत ख़राब है। ये जो मंजर पेश किए गए हैं उर्दू मरसिए में, मंजर निगारी बहुत ज़्यादा पेश किए गए। जितने नमूने मरसिए में हैं उतने नमूने उर्दू शायरी में किसी भी सिनफ में नहीं मिलते हैं। कहीं सुबह का सुहाना मंजर दिखाई देता है, कहीं तपती हुई दोपहर की तस्वीर खींची जाती है, कहीं शाम का समा नज़र आता है, कहीं घोड़े और तलवार की बारीक से बारीक तफसीलात बयान की जाती है, कहीं जंग की ऐसी तस्वीर खींची जाती है कि साफ तलवार चलती नज़र आती है और खून बरसता दिखाई देता है। तो कहीं जंग की ऐसी तस्वीर दिखाई जाती है कि क्या है, साफ तलवार चलता नज़र आता है और खून बरसता नज़र आता है, ऐसा लगता है कि खून बह रहा है। इस तरह से मंजर निगारी की जाती है, जंग के बारे में लिखा जाता है। अब आइए देखते हैं जज्बात निगारी। जज्बात निगारी के जैसे अच्छे नमूने इन मरासी में नज़र आते हैं वो भी कहीं और नहीं मिलते। हमारे मरसिया निगार नफ्सियात के बाकायदा इल्म से खा वाकिफ़ ना हों, लेकिन इंसान फितरत के वो ऐसे नब्ज़ शनास थे कि इसकी मिसालें कम मिलेंगी। मरसिए में इस तरह के किरदार बेशुमार हैं, लेकिन फ़नकार को इनके मिजाज से मुकम्मल आगाही हासिल है। मरसिए में क्या है, नफ्सियात के बाकायदा इल्म से इंसान वाकिफ़ ना भी हो, लेकिन ये जो मरसिया निगार होते हैं इंसान के फितरत को वो अच्छी तरह समझते हैं, और वो इंसान के ऐसे नब्ज़ शनास होते हैं कि इनकी मिसालें कम मिलेंगी। वो इंसान के नब्ज़ को समझते हैं और उनके बारे में इतने अच्छे से लिखते हैं कि हम पढ़कर रो देते हैं। ठीक है, लेकिन फ़नकार को इनके मिजाज से मुकम्मल आगाही हासिल है। मरसिए का बुनियादी मकसद रोना, रुलाना और रोने की तरगीब देना है। यही वजह है कि शहादत और बैन की पेशकश में शायर अपना सारा ज़ोर कलाम सर्फ कर देता है। मरसिए का मकसद क्या होता है, रोना और रुलाना, रोने की तरगीब देना। लिखने का अंदाज़ कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग पढ़े तो रो दें और फुट फुट कर रो दें। ठीक है, तो शायर क्या है, शहादत और बैन की पेशकश में अपना सारा ज़ोर कलाम सर्फ कर देता है, यानी खर्च कर देता है। अनीस और दबीर इनके पैरों के मरसियों में मरसिए की ये इज्जा आम तौर से पाए जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरसिए में ये तमाम अज्जा हों। जो अनीस और दबीर ने जो लिखा और इनके जो पैरों हैं, जो इनको जानने वाले हैं, जो इनको चाहने वाले हैं, जो इनकी तरह मरसिए लिखते हैं, उनके यहाँ ये सारे इज्जाए तरकीबी मिल जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोगों ने जो मरसिए लिखे हैं इसमें ये तमाम इज्जा शामिल हो। ठीक है, और इसी तरतीब के मुताबिक हों। बाज़ मरसिए ऐसे भी हैं जिनमें शहादत का बयान नहीं है, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद के वाक़यात नज़म किए गए हैं। लेकिन बाद में जो मरसिया लिखा गया है, कुछ ऐसे भी मरसिए हैं जो उनकी शहादत के बाद के वाक़या यानी उनकी कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। मरसिए का आगाज़ और इर्तिक़ा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मरसिए का आगाज़ और इर्तिक़ा पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके काम की है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।